Welcome back, everyone. So we were reading the Red Trap, and in the part one, we read that the Red Trap seller who enjoyed seeing people falling into the trap himself got himself into a trap by stealing money from the old man's house and deciding to go into the jungle, and that's where he got trapped and he was unable to get out of it. So now let's see whether he comes out of the jungle or what happens with him, whether he dies or not. Okay, let's see. It was late in December, darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. Finally, he saw no way out and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. There must be some people, there must be people nearby. He summoned all his strength, got up, and staggered in the direction of the sound. तो इसका मतलब है कि ये दिसंबर का महीना था और अंधेरा होता जा रहा था। इसकी वजह से खतरा और बढ़ गया और उसका जो ग्लूम, उसकी निराशा और डिस्पेयर जो थी वो भी बढ़ गई। फाइनली उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया और वो ग्राउंड पर गिर गया मरने के लिए, ये सोचते हुए कि उसका आखिरी पल आ चुका है। पर जैसे ही उसने अपना सर ग्राउंड पर रखा, उसे एक आवाज़ सुनाई दी, एक हार्ड थंपिंग साउंड सुनाई दिया। कोई शक नहीं था कि वो क्या था। उसने अपने आप को खड़ा किया और वो हथौड़े के स्ट्रोक्स का साउंड था जो कि एक आयन मिल से आ रहा था, ऐसा उसे लगा। उसे लगा कि पास में ही लोग होने चाहिए और उसने अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा किया, खड़ा हुआ और लंगड़ाते हुए आवाज़ की दिशा में चल पड़ा। The Ramzo ironworks, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill, and forge. In the summertime, long lines of heavy loaded barges and scows slid down the canal, which led to a large inland lake. And in the wintertime, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. रामजो एंड मिल्स के बारे में ये बताया गया है कि वो अब बंद हो चुका है, लेकिन कुछ साल पहले वो चालू था। वो एक लार्ज प्लांट था, उसमें स्मेल्टर, रोलिंग मिल और फोर्ज यानी कि कच्चा लोहा वगैरह उसका काम होता था। गर्मियों के दिनों में वहाँ पर लंबी लाइंस होती थी हैवी लोडेड बार्जेस शिप जो कि एक नहर के द्वारा वहाँ पहुँचती थी, विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक। और वो एक इनलैंड लेक में पहुँचती थी। और अगर सर्दियों के दिनों में जो रोड्स थी जो कि मिल के पास थी, वो काली हो जाती थी कोल डस्ट की वजह से, जो कि छनकर जो चारकोल क्रेट्स हैं उनसे छनकर गिर जाया करती थी। During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspirations, though as was the custom. He wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. So, तो ऐसी ही लंबी शाम क्रिसमस के पहले
मास्टर स्मिथ और उसका एक सहायक उस अंधेरी फॉर्ज के पास फॉर्ज में बैठा था, उस भट्टी के पास, और पिग आयरन का वेट कर रहे थे। पिग आयरन इज कच्चा लोहा जिसको कि आग में रख दिया गया था तैयार होने के लिए, ताकि उसको एनविल पर रखा जाए। और बार बार जो है उनमें से एक व्यक्ति उठता था और उस आयरन वार को स्टिर करता था, हिलाता था उसे। और जब वो वापस आते थे तो वो पसीने से तरबतर हो जाया करते थे। दो एज वॉज द कस्टम ही वॉर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट। और जैसा कि वहाँ एक रिवाज था कि वो एक लंबी शर्ट पहना हुआ था और लकड़ी के जूते पहना हुआ था ताकि उसके पैर ना जले। All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned and the burning coal cracked. The fire boy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof. तो ये नरेटर ने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह का माहौल था उस आयरन मिल का। तो ऐसा कहा, उन्होंने कहा है कि वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहती थी। कभी बड़ी बेलोज जो थी धोकनी उसकी आवाज़ आती थी, कभी चलते हुए कोल की क्रैकिंग की आवाज़ आती थी, और जो फायर बॉय है वो चारकोल को फर्नेस के मुंह में डालता था आवाज़ के साथ, और बाहर वाटरफॉल की आवाज़ आती थी। एंड जो उत्तरी हवाएं थी वो भी बारिश के साथ जो ईंटों की बनी हुई टाइल्ड रूफ है उस पर गिर रही थी और वो भी आवाज़ पैदा कर रही थी। तो कई तरह का आवाज़ वहाँ पर पैदा हो रहा था। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close to the furnace. तो ये आवाज़ ही रही होगी जिसकी वजह से जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है उसे आवाज़ नहीं सुनाई दी इस रेड टप सेलर की, जो दरवाज़ा निकाल के भट्टी के पास चला गया था। लेकिन जब वो भट्टी के सामने खड़ा हुआ था तब उसने उसे नोटिस किया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire. So अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये उनके लिए अनयूजुअल नहीं था, क्योंकि कोई भी घुमक्कड़, कोई भी गरीब घुमक्कड़ जिसके पास कोई घर नहीं है प्रॉपर, वो रात गुजारने के लिए यहाँ आ जाया करता था। क्योंकि जो लाइट का जो रोशनी थी फोर्ट से निकलने वाली वो दूर दूर तक दिखाई देती थी और उससे आकर्षित होकर ये लोग, जैसे कि जो दिए की लौ है उसके प्रति पतंगे आकर्षित होते हैं, उसी तरीके से ये भी जो गरीब घुमक्कड़ लोग हैं वो भी आकर्षित होकर वहाँ पहुँच जाया करते थे और आग के सामने अपने आप को गर्म करते थे। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। ब्लैक स्मिथ ने उसको कैजुअली देखा और इंडिफरेंटली देखा, मतलब बिना किसी इंटरेस्ट के। अब उसके लिए इंट्रूडर था। इंट्रूडर मतलब जो कि बिना परमिशन के घुस आते हैं, उसको इंट्रूडर बोला जाता है। ही लुक द वे पीपल ऑफ दिस हिज टाइप यूजुअली डिड, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of red straps dangling on his chest. तो जैसा कि लोग आग दिखते थे, जो भी इस तरह से गरीब लोग, वो वैसा ही दिख रहा था। फटेयाल, लंबी दाढ़ी, गंदा सा, और चूहे पकड़ने के पीढ़े लटकाए हुए। He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word. उस रेट्रप सेलर ने परमिशन ली कि मुझे रात में रुकने के लिए यह रहने दिया जाए, और
मास्टर ब्लैक स्मिथ ने भी उसको सर हिला के बोल दिया कि हाँ भाई रह ले, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कोई एक शब्द नहीं बोला। The tramp did not say anything either. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. और जो ट्रैम्प है, ट्रैम्प मतलब भी घुमक्कड़ ही होता है, उसने भी एक शब्द नहीं कहा क्योंकि उसका कोई बोलने का कोई उद्देश्य नहीं था। वो केवल वहाँ रात गुजारने के लिए ही आया था। In those days, the Ramjo Iron Milk was owned by a very prominent ironmaster whose greatest ambition was to ship out gold iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. उन दिनों रामजो आयन मिल्क एक बहुत ही प्रोमिनेंट आयन मास्टर के द्वारा ओन किया जाता था, मतलब उसका मालिकाना हक था। और उसकी ग्रेटेस्ट एम्बिशन ज़िंदगी में ये थी कि वो मार्केट में बहुत अच्छा आयरन जो है सप्लाई करे। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल। और वो दिन रात इस बात को देखता था कि जो है काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फॉर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। और इसी समय उस आयरन मास्टर का वहाँ आना हुआ इंस्पेक्शन के लिए। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way to so close to the furnace that steam rose from his wet rags. So naturally, उसने आयरन मास्टर ने देखा कि एक लंबा सा रगामफिन मतलब गरीब और पटियाल व्यक्ति जो कि फर्नेस के पास बैठा हुआ था और उसके शरीर से जो है स्टीम निकल रही थी क्योंकि वो गीला हो चुका था। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर। आयरन मास्टर ने वैसा नहीं किया जैसा कि मास्टर ब्लैक स्मिथ ने किया था। I mean, उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया था। बट ये आयरन मास्टर जो आयरन मास्टर है उसने उसको रिस्पॉन्स दिया। He walked close to him, looked him over at him very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. उसके पास गया, उसको बहुत ध्यान से देखा, उसका जो स्लाउच यानी कि जो तिरछा हैट जो था उसको हटाया ताकि उसका चेहरा देख सके। बट ऑफ कोर्स मैं इसको थोड़ा सा आपको, चूँकि ये कॉन्वर्सेशन है तो कॉन्वर्सेशन के अंदाज में ही मैं आप लोगों को बोलने की कोशिश करता हूँ। What of course, it is you, Nilsors, he said. How do you look? ठीक है, यस, इस तरह से उसने बोला कि जो आयरन मास्टर उसे लगा कि ये तो उसका कोई जानने वाला है, कोई जान पहचान का व्यक्ति है। वो उसको निल्स ओलफ बोल रहा था और वो कह रहा था कि अरे तुम कैसे दिख रहे हो, क्या हुआ तुम्हें। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर रैमजो एंड डिड नॉट इवन नो what his name was. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. Therefore, he did not want to undeceive him all at once. Sorry guys, ये जो गटर का पानी है वो जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तभी आता है, तो प्लीज़ डोंट माइंड इट, है ना। उसका साउंड जो है क्या कर सकते हैं। ओके, सो जो मैन था रेड ट्रैप्स के साथ उसने कभी भी नहीं देखा था आयरन मास्टर को रामजो पर, और उसे पता भी नहीं था कि उसका नाम क्या था। लेकिन उसे लगा कि चलिए, उसको ऐसा लगता है कि क्या मैं उनका एक अक्वेंटेंस हूँ, यानी कि जानने वाला हूँ, तो अच्छी बात है, तो शायद वो मुझे कुछ 1-2 रुपए ही दे देगा, क्रोना दे देगा। इसलिए उसने उसको उसका भ्रम दूर करने की कोशिश नहीं की। अब ये जो रेक्टर सेलर है, ये उसके शब्द हैं। वो कहता है उसके रिस्पॉन्स में,
Yes, God knows things have gone downhill with me. वो कहता है कि भगवान ही जानता है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। तो जो आयरन मास्टर वो कहता है, यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, इट नेवर वुड हैव हैपेंड। वेल, ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी। उसने कहा कि अगर मैं उस टाइम पर सर्विस में होता, मैं ऐसा कभी नहीं होने देता, लेकिन हाँ, अब तो मैं मेरे साथ घर चलना होगा। To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regiment comrade, that however did not please the tramp. लेकिन जब उसे लगा कि अरे ये क्या हुआ, ये आयरन मास्टर तो मुझे घर ले जाना चाहता है, ये समझकर कि वो कोई पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड यानी कि साथी है, उसे अच्छा नहीं लगा। फिर वो कहता है, नो, आई couldn't थिंक ऑफ इट, लुकिंग क्वाइट अलार्म। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं जाना चाहिए। ही थॉट ऑफ द 30 kroner to go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. तो उसने उस 30 करोड़ के बारे में सोचा और कहा कि उस पैसे को लेकर मैनर के घर पे जाना। मैनर इज़ द ओनर ऑफ दिस आयरन मिल। ऐसा है जैसे कि खुद को जो है शेर की मान में छोड़ना है, खुद को खतरे में डालना है। वो केवल उस भट्टी के पास सोना चाहता था। भट्टी आई मीन फॉर्ज, जहाँ पर लोहा पिघलाया जाता है। और इनकॉन्स्पिक्यूअसली मतलब बिना नोटिस, नोटिसिंग, विदाउट बीइंग नोटिस्ड बाय समवन, और निकल जाना चाहता था। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। जो आयरन मास्टर है उसे लगा कि शायद वो अपने गंदे कपड़ों की वजह से एम्बैरस फील कर रहा है। फिर वो उसको ये बोलता है, प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। Elizabeth is dead. As you may already have heard, my boys are abroad and there is no one at home except my oldest daughter and myself. We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. तो जो आयरन मास्टर को बोलता है कि अरे ऐसा मत सोचो कि हमारा आज घर अच्छा है और तुम वहाँ पर सूट नहीं करोगे। एलिजाबेथ मर चुकी है और जैसा कि तुमने सुना होगा, और मेरे लड़के जो है विदेश में हैं और घर पर मेरे सबसे बड़ी पुत्री के अलावा और मेरे अलावा कोई नहीं है। हम सोच ही रहे थे कि कितना बुरा होगा क्रिसमस पर इस बार कि हम दोनों ही यहाँ पर हों, कोई हमारे पास कोई कंपनी ना हो, साथी ना हो ना, वो हमारे साथ चलो और क्रिसमस का जो खाना है उसको जल्दी से ख़त्म करने में हमारी मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सैड नो एंड अगेन नो एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। लेकिन वो बार बार नो 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 बोल रहा है, लेकिन आयरन मास्टर ने भी सोच लिया था कि उसको मनवाना है बात। It looks as though Captain Von Stell preferred to stay with you tonight. This is, I think, Sweden word. It's difficult to pronounce. Sandstrom, he said to the master blacksmith and turned on his heel. तो फाइनली जो आयरन मास्टर है वो हार मान गया। उसने कहा कि मुझे लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेल जो है आज तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। एंड दिस इज द नेम ऑफ दिस ब्लैक स्मिथ, स्टैंडस्ट्रॉम।
और उसके बाद वो वापस चला गया. बट ही laughed to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. और आयरन मास्टर जो है मन ही मन में हंस रहा था, और जो ब्लैक स्मिथ है वो समझ गया कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in. But this time it was not the Iron Master. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. So, अगली बार सिर्फ आधा घंटे के बाद उन्हें एक कैरेज के पहियों की आवाज़ सुनाई दी फौज के बाहर, और एक नया मेहमान आया. बट इस बार आयरन मास्टर नहीं था. उसने अपनी पुत्री को वहाँ भेज दिया था, स्वभावतः स्पष्ट तौर पर ये आशा करते हुए कि वो यानी कि उसकी डॉटर जो है उसको अच्छे से मना सकती है, परसुएट कर सकती है. शी एंटर फॉलोड बाय ए बैले carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled over his eyes. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his head. The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. और उसकी जो पुत्री है वो एंटर करती है, उसके पीछे पीछे बैले आता है. बैले इज़ अ मेल सर्वेंट जो अपने हाथों में उसका जो फर कोट उसको पकड़े हुआ था. वो सुंदर नहीं थी, लेकिन बहुत ही मोडेस्ट और शर्मीली थी, और फर्नेस में सब कुछ पहले की तरह ही था. मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसका जो साथी है वो बेंच पे बैठे थे. आयरन और चारकोल जो है फर्नेस में चमक रहे थे, और स्ट्रेंजर यानी कि जो रेड ट्रैप सेलर है वो अपना लेटा हुआ था फ्लोर पर, और उसने एक पिग आयरन जो था, एक कच्चा लोहा, उसको एक तकिया बना रखा था, और अपना हेड को जो है अपनी आंखों पर रख के बढ़िया आराम से सो रहा था. और जैसे ही उस युवा लड़की ने उसको देखा और उसके पास गई और अपने उसके हेड को उठाया, तो जो आदमी था वो एकदम से, जिसको एक आंख खोलकर सोने की आदत थी, वो एकदम से खड़ा हो गया और डर गया. अभी ये लड़की क्या कहती है? My name is Adla Wilmanson. My father came home and said that he wanted to sleep here in the forest tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I'm so sorry, Captain, that you are having such a hard time. तो वो लड़की उसको बताती है कि उसका नाम एडला है, एडला विलमेंसन है, और वो कहती है कि मेरे पिताजी घर आए और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर सोना चाहते हो, और फिर मैंने उनसे परमिशन ली यहाँ आने की और आपको घर ले जाने की. और मुझे बहुत दुख हो रहा है कैप्टन कि आपको इस स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, बहुत ही बुरा टाइम आपका चल रहा है. She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Either he has stolen something or else he has escaped from jail, she thought, and added quickly, "You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve." तो उस लड़की ने उसको समझाने की कोशिश की, उसको बहुत ही कंपेशनेटली उसकी ओर देखा और हैवी आइज़ के साथ, और उसे नोटिस किया कि वो आदमी डरा हुआ है, या तो उसने कुछ चुरा लिया है या फिर वो जेल से भागा हुआ है, ऐसा उसे लगा. तो उसने कहा कि कैप्टन, आप को
बिल्कुल जैसे ही क्रिसमस ईव ख़त्म हो जाएगी, आपको छोड़ दिया जाएगा। आप जैसे हैं वैसा आपको रवाना कर दिया जाएगा। केवल आपको क्रिसमस ईव पर हमारे साथ रुकना है। She said this in such a friendly manner that the writer peddler must have felt confidence in her. तो उसने इतने फ्रेंडली मैनर में कहा था कि जो राइटर पेडलर है उसको उस पर विश्वास हो गया। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. तो उस राइटर ऑफ सेलर ने कहा कि ऐसा मुझे नहीं लगा था कभी कि आप इतना तकलीफ उठाएंगी मेरे लिए, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. So उस राइटर ऑफ सेलर ने जो फर कोट जो था उसको ले लिया, जो कि बैले ने उसको दिया था, और उसने अपने फटे चिते कपड़ों के ऊपर उस फर कोट को पहना और उस यंग लेडी के साथ साथ कैरिज की ओर बढ़ा। और ब्लैक स्मिथ की तरफ उसने बिल्कुल भी नहीं देखा, जो कि बहुत ही आश्चर्यचकित था ये देखकर कि ये फटेहाल व्यक्ति जो है एक फर कोट पहन के कार की ओर जा रहा है। ये क्या माजरा है, कौन है ये व्यक्ति? बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इवल फॉरबोर्डिंग्स। लेकिन जैसे ही वो उस कैरिज में बैठ के मैनर हाउस की ओर जा रहा था, उसके दिमाग में कुछ ऐसा लगा कि कुछ अपशकुन होने जा रहा है। वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी, ही थॉट, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। उसने कहा कि मैंने उस व्यक्ति का पैसा क्यों लिया, और वो कह रहा है कि अब मैं एक ट्रैप में बैठा हूँ और इससे कभी बाहर नहीं आ सकता हूँ। तो एक ट्रैप से निकल के दूसरे ट्रैप में वो फंसता जा रहा था। पहला ट्रैप था पैसा चुराना और जंगल में फंस जाना, और ये दूसरा ट्रैप था ब्लैक स्मिथ की डॉटर की बात मान के उनके साथ जाना। उसे पता है कि वो ट्रैप में फंस रहा है, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट 2 में इतना ही। इन द पार्ट 3 we will complete the story. If you like the story, if you like my explanation, please like and comment and do subscribe. And if you want a video on any topic, please write that too in the comment, and I will definitely get back to that. Thank you.